Hi, I'm Adarsh Som from ET Government The Economic Times. Today I'm here in the city of Nawabs, Lucknow, at the UP Vision Conclave 4.0. I have a very special guest with me. He's Dr. DP Singh, the Education Advisor to the Honorable CM of Uttar Pradesh and the former Chairman of UGC. Hi, Singh sir. First of all, welcome Namaskar. to the Vision Conclave. Thank you. So I would like to understand from you as an education advisor, so how do you see this vision of Viksit Uttar Pradesh translating on ground, and what is the key role that education sector will play in making Uttar Pradesh a Viksit Uttar Pradesh? Okay, education and skilling, it plays very important role in the growth and development of any state or the nation, even the world. And therefore, the vision of Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh for Viksit Uttar Pradesh 2047, linked with the Viksit Bharat 2047, is very important. He always focuses on developing the required human resource which is fully equipped with the skills, and also the youth which is also value based. और इसलिए जो विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारी दृष्टि है, वह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास होलिस्टिक होना चाहिए. वी शुड हैव होलिस्टिक डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट विच इज़ नॉट ओनली इन इकोनॉमिक टर्म्स, which is not only in physical sense, but we should also have cultural development. We should also have spiritual development. और इसलिए वो समग्र विकास की बात करते हैं कि हमारे सभी क्षेत्रों में विकास होना चाहिए. भारत एक सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से पूरे विश्व में जाना जाता है. भारत की एक राष्ट्र के रूप में पूरी एक सॉफ्ट स्किल्स हैं, सॉफ्ट पावर है, शांति की है, दया की है, करुणा की है, सौहार्द की है, समरसता की है, और सबको साथ लेकर चलने की है. और इसलिए जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इसमें सबका सहयोग होना चाहिए. जिन लोगों के लिए विकसित भारत बन रहा है, उनकी भी सोच इसमें समाहित होनी चाहिए. वो लोग क्या सोचते हैं, और इसलिए सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, ये उनका स्लोगन रहता है. और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो इस पर 5 T's पे जोड़ देते हैं, जिसमें कि टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है, टूरिज्म है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो ये जो है उनका कहना है, जिसमें कि टैलेंट में आई वांट टू फोकस ऑन द टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी, है ना. बाकी चीज़ों के साथ साथ क्योंकि बहुत ज़रूरी है, जिस विश्व में हम रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, विदाउट टेक्नोलॉजी वी कांट मूव, एंड देयरफॉर वी शुड फोकस ऑन टेक्नोलॉजी. बट फॉर दैट, फॉर यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी, फॉर यूजिंग एनी अप्लाइड साइंस, वी नीड टैलेंट. We need talented people. We need talented people in all walks of life, and for that we require appropriate education and skilling. And therefore the vision of Honorable Chief Minister in Uttar Pradesh is that we should have education and skilling to develop our youth power, our youth generation, which is fully equipped with the desired skills at the local level, skills at the state level, skills at the national level, and also UP should have the capability in future to provide the equipped, skilled human resource globally. And therefore, at the same time, his vision is that that youth power should be value-based. They should conduct in such a way that they have that cultural background, the specialties and uniqueness of the Uttar Pradesh, which is known for spirituality, and such a youth power will certainly contribute in the growth and development of the Uttar Pradesh, in making it Viksit Uttar Pradesh in 2047,
which would finally contribute in the Viksit Bharat 2047. डॉक्टर सिंह, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वेरियस इंस्टीट्यूशंस में, हायर एजुकेशन में भी, स्कूल्स में भी, तो एम्प्लॉयबिलिटी एक बड़ा मुद्दा निकल के आता है जहाँ पे स्किल की बात होती है, जहाँ पे एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है। तो किस तरह से ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये इंश्योर करती है कि जो हमारे आने वाली अपकमिंग वर्कफोर्स, हमारा जो यूथ है वो मोर एम्प्लॉयबल होगा, मोर क्वालिटेटिवली एजुकेटेड होगा और मोर टैलेंटेड होगा, जिसके अब्जॉर्प्शन इंडस्ट्री में ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो किस तरह से यूपी गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है और क्या अभी तक के ऑन ग्राउंड रिजल्ट्स रहे हैं, किस तरह से वो चीज़ ट्रांसलेट हुई है ऑन ग्राउंड? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई और ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और जो कि अपने देश में 34 वर्ष के बाद आई है। इससे पहले की जो शिक्षा नीति थी वो 1986 में बनी थी और इसमें बहुत फोकस किया गया है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ लर्नर्स के ऊपर। मेरा ये सौभाग्य है कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 घोषित हुई और इसका क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ, उस समय मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का चेयरमैन था और इसलिए बहुत नज़दीकी से मैंने उस पॉलिसी को बनते हुए और उसके बाद उसके क्रियान्वित होते हुए देखा है और अब उसको उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के शिक्षा सलाहकार के रूप में हम क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो प्रोजेक्ट है हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें भी वन ऑफ दी सेक्टर्स बिसाइड्स अदर्स इज़ एजुकेशन एंड स्किलिंग। क्योंकि जो भी विकास होगा विभिन्न क्षेत्रों में होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे ट्रांसपोर्ट में हो या किसी भी क्षेत्र में होगा, उसके लिए वी विल रिक्वायर एडुकेट एंड फुली इक्विप्ड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स और वो जो है प्रॉपर एजुकेशन और स्किलिंग के माध्यम से आएगी। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि ये है कि हमें ITI इसका आधुनिकीकरण करते हुए वहाँ अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। वहाँ से हमें जो मिडिल लेवल का स्किल्ड मैन पावर है वो डेवलप करना चाहिए। हमें पॉलिटेक्निक्स में भी मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड करना चाहिए और उसके साथ साथ पूरी की पूरी जो हमारी तकनीकी शिक्षा है या उस शिक्षा है उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए और जो इंडस्ट्री की या डेवलपमेंट ड्रिवन कहना चाहिए इसको, नॉट ओनली इंडस्ट्री ड्रिवन, इंडस्ट्री के साथ साथ डेवलपमेंट ड्रिवन जो हमारे पाठ्यक्रम हैं उसका संचालन करना चाहिए। और इसलिए हर एक विद्यार्थी जो है वो कुछ न कुछ उसके हाथों में हुनर हो, स्किल्स हों कि वो जब भी शिक्षा से बाहर निकले तो कुछ न कुछ कार्य डिसेंट लिविंग के लिए उसको मिल सके। और इसलिए उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट पर बहुत फोकस है। कक्षा 6 से ही क्लास 6 ऑनवर्ड्स जो है वोकेशनल पाठ्यक्रम शामिल करने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सिफारिश की गई है, उसको भी हमारी राज्य सरकार पूर्ण मनोयोग के साथ क्रियान्वित कर रही है। ये जब प्रयास सफल होंगे तो निश्चित रूप से विकसित उत्तर प्रदेश 2047 बनाने में ये सहभागी बनेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर सिंह फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद।